Namaste Behan, Namaste Bhai. Welcome to Grow with Harpreet. Today we are going to learn small things which will help us to make money in the market and help us to become a successful investor or trader, whatever we choose to become. So let's log in our credentials. So this is the layout of Grow app. You can use any of apps for trading as well as investing. As I'm comfortable in this app, so I use Grow app for all my investing and trading purposes. So this is how the page looks. Today we are going to discuss all the detailed things which are needed. So this is how the page looks. First of all, you can see indexes on the top. Then you have the stocks below that. In the right side, you can see wish list and your investments. So first of all, we will see how to read chart. So chart is very important thing when we are investing or trading. So this is how a rough chart looks. It is of Nifty 50. Nifty 50 is at 24,141 mark. So we will be clicking at this terminal. You can see. So a page will open, which will give us a detailed look of how our chart looks in the candlestick pattern. So this is how you can see chart of Nifty 50. Now it may be very new to you. You can see. So do not worry about it. You will learn gradually. That is why I am posting this tutorial. So this is what chart looks like. So we have taken 3 indicators. What are indicators? Indicators are the tools which help us to analyze chart properly with little more accuracy. So what I do when I take a trade, I use 3 of the parameters or tools which I'm going to show you now. So this is how a chart looks. This is a raw look of a chart. So this is what you can see. The candles are going up, then this is consolidating, then going down, then going up, then down, then up, then down, up, consolidating, and then bull run. So there are so many things you have to see in this chart. First of all, this is in the 5-minute time frame. You can see this is the chart of 1st July. You can see the timing. It is 9:15. So see, this is from 9:15 to 3:25. This is how a chart looks like. So first of all, this is a 5-minute chart. We can switch to 3-minute, 10-minute, 15-minute, 30-minute, 1 hour, 2 hour. This is for different time frames of all different kind of trading that I'll tell you later. So this is indicator section. So first of all, what I use or what a basic setup looks like, I'll take first of all relative strength index, which is RSI, relative strength index. This shows the strength of the stock. So this will look like this. So what you have to do, you have to go in settings. It will come like this. You have to go and click in settings. Then what you have to do, you have to go in style, and this upper limit will be 70 by default. You have to do it 60. Middle limit, leave it as 50, and the lower you have to make 40. Then you can adjust this line if you want. Then this line, make it a bit broader so that it will be visible, and set as default setting and press OK. So RSI is basically, it shows the strength of the candlesticks and strength of the stock. Having 3 indicators, it looks like this. So what we can see is this is 28 March, this is 28 June. After putting 3 indicators, it looks like this. So this is of 28 June, you can see, and this section is of 1st of July 2024.
So now you'll ask what these three indicators do and why I am telling you you have these three indicators to analyze chart properly. First of all, three indicators we have done. Now I'll tell you what these indicators tell us. First of all, this indicator is 44 moving average, and this 44 moving average tells us if the candles are above of this line, then the stock will go up, and if the candles, okay, so now I'll tell you the functions of this three. Okay, after inserting all the three indicators, I'll tell you the functions of each of them. Now this green line is moving average, exponential moving average, 44 moving average. So this is line is the average of last 44 days where market has traded. So if the candlesticks are above this green line, so we can go for buying side. See, the candles are going up, and if the candles cut this green line and starts going down, then the market is on the selling side, so we can choose to sell other than buying. So like this is again going up, again going down, and again this is taking support and going up, taking support and going up. So this is how we get an idea. This is how we get an idea of. Now you can clearly see this portion is of 2nd of July 2024 today, and this portion is of last Friday 28th of June 2024. So now I'll explain you all the three indicators, the basic indicators which help us to analyze the market more accurately. थोड़ी हिंदी में बात करता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी मिले. पहले तो हम ये ग्रीन लाइन देख लेते हैं. अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न ग्रीन लाइन से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है और इंडेक्स आपका ऊपर जाएगा, लाइक इट हैज़ गॉन अप कंसिडरेबली. उसके बाद कंसोलिडेट किया है. फिर अगर ये ग्रीन लाइन कट करता है कैंडलस्टिक पैटर्न, तो मार्केट नीचे जाएगा, जैसे ये नीचे गया, फिर ऊपर, फिर नीचे. और ये 44 मूविंग एवरेज एक अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है. सो आप देख सकते हैं कि लगातार इसकी सपोर्ट लेते हुए मार्केट यहाँ तक क्लोज हुआ है आज के दिन. सो बेसिकली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड मार्केट मोर क्लियरली. दूसरा इंडिकेटर है हमारे पास पिवट पॉइंट इंडिकेटर. पिवट पॉइंट इंडिकेटर बेसिकली हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे जानकारी देता है. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा पाया क्योंकि ये लाइन ने रेजिस्टेंस का काम किया. जैसे छत रेजिस्टेंस का काम करती है, वैसे ही ये छत का काम किया इसने, और ये ऊपर नहीं जा पाया. कंसोलिडेट किया, फिर ये नीचे आ गया. उसके बाद फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, कंसोलिडेट किया, लेकिन नीचे नहीं जा पाया. उसके बाद हो सकता है ये कल नीचे जाए. सो एक बेसिक आइडिया हमें मिलता है. आप देख सकते हो यहाँ से ये कंसोलिडेट किया, नीचे जाने का कोशिश किया, लेकिन नीचे नहीं गया. उसके बाद फिर ये ऊपर गया और फिर ऊपर. सो ये दिस ऑल्सो हेल्प अस टू हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट मार्केट इज गोइंग टू डू और हाउ वी हैव टू प्ले वेरी इंटेलिजेंटली टू मेक मनी इन द मार्केट. और ये जो तीसरा इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, दिस इज माय फेवरेट इंडिकेटर बिकॉज ये इतनी क्लैरिटी दे देता है कि हमें बहुत आसानी होती है टू मेक मनी. अब आप बोलोगे कि ये दोनों चार्ट सेम टू सेम है तो क्या फ़र्क है. सो आपको दिखाऊं मैं कि जैसे ये लाइन ऊपर गई है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी ऊपर गए हैं, दिस कंसोलिडेटेड, दिस ऑल्सो कंसोलिडेटेड, लेकिन यहाँ पे एक कैच है. ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना है विच इज़ वेरी फेमस पैटर्न इन द चार्ट्स और इन द स्टॉक मार्केट हिस्ट्री, और ये एक डब्ल्यू बना है. अब ये दोनों डब्ल्यू में क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ. लेट मी यूज़ वन ऑफ द टूल्स. जैसे ये ट्रेंड लाइन है, आपको क्लियरली दिखाऊं, ये नीचे जा रही है, ये डब्ल्यू नीचे, ये लोअर साइड का ऊपर था, एंड द सेकंड साइड ऑफ द डब्ल्यू इज बिट मोर लोअर. ठीक है. वेयर एज एक और आप देखो, ये डब्ल्यू क्या कर रहा है, ये डब्ल्यू हाइयर साइड में जा रहा है. सो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं. सो दिस
अ वेरी फेमस टर्म इन द मार्केट, RSI डाइवर्जेंस। तो इसे RSI डाइवर्जेंस बोलते हैं। इससे हमें पता चलता है कि मार्केट आगे कैसा परफॉर्म करेगा। और आपको पता है कि ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, मतलब ये स्टॉक या इंडेक्स का आपको स्ट्रेंथ बताता है कि कितनी स्ट्रेंथ, कितनी ताकत है स्टॉक में। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेंथ ज़्यादा हुई है, लेकिन आपको कैंडलस्टिक पैटर्न फॉल्स बता रहा है कि स्टॉक स्ट्रेंथ कम हुई है या स्टॉक नीचे जाने वाला है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। सो हमें RSI हमेशा देखना है। RSI एक्ट्स एज एन इंजन, वेयर एज दीज कैंडलस्टिक एक्ट्स एज अ बोगीज। सो जो ये स्ट्रेंथ बताएगा वैसा ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स परफॉर्म करेंगे। सो आप देख रहे हो कि इससे ऊपर ये था, स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही थी, लेकिन इसने थोड़ी देर तक मार्केट ने फेक किया, सारे यूजर्स को ट्रैप किया, उनका पैसा खाया। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये स्ट्रेट अप ऊपर गया। ऑल्दो यू कैन सी कि ये इससे थोड़ा सा ऊपर था, उसके बाद यहाँ स्ट्रेंथ कंसोलिडेट की है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो कि ड्रास्टिकली इट हैज गॉन अप। सो जब भी RSI डाइवर्जेंस, W पैटर्न, M पैटर्न ऐसा बने, तो आप दोनों के लोअर लोज को एक बार कंपेयर करना। अगर दोनों लोअर लोज में RSI डाइवर्जेंस आ रहा है, तो फिर आपको आराम से कुछ और पैरामीटर्स देख के ट्रेड ले लेना चाहिए, एंड यू कैन बुक गुड प्रॉफिट अराउंड। यू कैन सी 24,000 मार्क से हम आराम से यहाँ पे 150 पॉइंट्स है। अगर हमें 10, 20, 30, 40, 50 जितने पॉइंट्स भी मिलते हैं, वी कुड हैव बुक्ड गुड प्रॉफिट। सो ये 3 बेसिक इंडिकेटर्स हैं, एक 44 मूविंग एवरेज, दूसरा पिवट पॉइंट इंडिकेटर्स, और तीसरा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये 3 इंडिकेटर्स बेसिक इंडिकेटर्स हैं जो कि कोई भी बिगनर यूज कर सकता है और अच्छी प्रॉफिट बना सकता है। सो ये था चार्ट देखना। Bite of it I'm giving you. For example, what could happen? You have clearly made out, आपको पता चल गया था कि ये W पैटर्न RSI डाइवर्जेंस है और मुझे यहाँ ट्रेड लेना है। यहाँ पे ये पहली कैंडल बनी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और इसके ब्रेकआउट पे इस जगह पे, लेट मी मार्क, इस जगह पे अगर आपने ट्रेड लिया होता, थोड़ा बड़ा कर दूं, अगर इस जगह पे आपने ट्रेड लिया होता, नाउ सी 24,115 में, आप 24,015 में आपने ट्रेड लिया होता, इजीली एफर्टलेसली, आप देख सकते हो। अगर आपने यहाँ भी कट की होती पोजीशन, आपको ऐसा लगता कि ये लाइन फिर सपोर्ट का काम करेगी। अगर आपने यहाँ भी पोजीशन अपनी कट की होती, तो आपको 40 पॉइंट मिलते हैं। 40 पॉइंट अगर इंडेक्स आपका 40 पॉइंट ऊपर गया है, तो 30-40% आप मान के चलो कि 10 पॉइंट्स आपको इजीली मिलते, 10 to 15 पॉइंट्स। और अगर आपने 100 क्वांटिटीज ली होती और उसे अगर 15 से मल्टीप्लाई किया होता, 1500 रुपीज़ आपको ईजिली मिल जाते। अगर आपने 1000 क्वांटिटी ली होती, और अगर 15 पॉइंट्स आपको मिले हैं, तो ईजिली 15,000 रुपीज़ आपके बन जाते हैं। कितनी देर में बनते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये कैंडल आपकी बनी है 9:20 में, 9:20 से लेकर आप रुके थे 9:35 तक। 15-20 मिनट के अंदर अंदर आपको 15,000 रुपये मिल जाते। सो दिस इज़ वॉट बेसिक लेआउट ऑफ हाउ टू रीड चार्ट्स। और भी बहुत सारे इंडिकेटर हैं, बहुत सारे ट्रेडर बहुत सारे इंडिकेटर यूज़ करते हैं, बट मैं हमेशा सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे ऐसे सेटअप्स होते हैं, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज होती हैं, स्कैल्पिंग होती हैं, बहुत सारी अलग अलग सेटअप्स होते हैं जिसमें और भी इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं। बट ये बेसिक लेआउट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि एज अ बिगनर आप इसे देख सकते हो। अगर आप बोलो कि और दिखाइए, तो फॉर एग्जांपल बहुत जन बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। लेट्स सी व्हाट इट शोज। बैंक निफ्टी, ये 2 दिन का चार्ट है। ये 1 तारीख का है, 1 जुलाई, एंड दिस इज 28 जून।
आप देख सकते हो मूविंग एवरेज से क्लियरली आप देख सकते हो ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, कंसोलिडेट कंसोलिडेट कंसोलिडेट, और ये पूरा कंसोलिडेशन इस लाइन के ऊपर हुआ है। फिर आप यहाँ देख सकते हो कि ये चार्ट ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न नीचे गया, ऊपर गया, लेकिन ये लाइन को कट करने की कोशिश की बट नहीं कर पाया, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स आर टेलिंग दैट द चार्ट और द प्राइस एक्शन इज बिलो 44 मूविंग एवरेज। सो हमें पता चल रहा है क्लियरली कि आज हमें ट्रेड लेना है तो पुट साइड में लेना है, कॉल साइड में नहीं लेना है। अगेन यू कैन सी ये कंसोलिडेट कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तोड़ नहीं पाया, और फिर यहाँ पे तोड़ा इसने, अब तोड़ा तो ये ऊपर ही रह गया, नीचे नहीं आ पा रहा है। सो अगेन मैंने बोला हुआ है पहले कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और उसी का काम करता है। सो दिस वाज ऑल फॉर हाउ टू रीड चार्ट। बाकी मैं बहुत सारे और सेशंस लाने वाला हूँ जिसमें कि सेटअप्स होंगे, डिफरेंट सेटअप्स फॉर डिफरेंट ट्रेडिंग। Now let's move back to the indexes part. So there are, we can see all the indexes ना, we should see all the indexes कि कौन कौन से इंडेक्स होते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, BSE सेंसेक्स ये वाला, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, BSE बैंक EX, इंडिया बिक्स, निफ्टी टोटल मार्केट, निफ्टी नेक्स्ट 50 एंड निफ्टी 100। सो इतने सारे इंडिकेटर्स, इतने सारे इंडेक्सेस हैं जहां हम ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। द ओनली चैलेंज इज कि हमें सही तरीका पता हो जिससे हमें पैसा बना सकें। एंड ये वाले सारे ग्लोबल इंडेक्सेस हैं जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड यू इफ पहले आप अपने इंडियन मार्केट में ट्रेड करो और सीखो, उसके बाद you can go for global market. So this was all about indexes and how to read chart. Okay, and indicators मैंने आपको बताया 3 इंडिकेटर कौन कौन से हैं। एक है 44 मूविंग एवरेज, एक है पिवट पॉइंट इंडिकेटर, और तीसरा था रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि बेसिक इंडिकेटर्स हैं जिन्हें यूज़ करके आप स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट योर जर्नी ऑफ ट्रेडिंग एज अ ट्रेडर, एंड आप कुछ प्रॉफिट बना सकते हो मार्केट से, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे यू विल मेक गुड प्रॉफिट। और एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं चार्ट में, वो थी टाइमिंग। सो व्हाट हैपेंस कि 5 मिनट टाइमिंग इज अ जनरल टाइमिंग वी यूज़। 5 मिनट की कैंडल स्टिक हम देख के ट्रेड करते हैं। हम यहाँ पे 3 मिनट की कैंडल्स भी देख सकते हो। 3 मिनट की कैंडल्स ज़्यादा होगी कंपेरेटिवली। ये जस्ट 1 डे का चार्ट है। सो आप देख रहे हो बहुत सारी हो गई, क्योंकि 3 मिनट की एक कैंडल है, ये वाली सिंगल कैंडल इज ऑफ 3 मिनट्स। 3 मिनट में क्या होती है? स्कैल्पिंग होती है। व्हाट इज स्कैल्पिंग? नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाट इज स्कैल्पिंग। एक ट्रेडर क्या करता है, वो देखता है, फॉर एग्जाम्पल दिस कैंडल, यू कैन सी क्लियरली दिस कैंडल इज अ ग्रीन कैंडल। इसके बाद क्या है, जो नेक्स्ट कैंडल बनी है और इसका हाई ब्रेक हुआ है, आप देख सकते हो इस जगह पे आप देख सकते हो 2-3 कैंडल एक साथ कंसोलिडेट की है, फिर ये ग्रीन कैंडल ने इसका हाई तोड़ा, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे अराउंड 52,434, और यहाँ से एक 3 मिनट या 6 मिनट का ट्रेड, 2 से 3 कैंडल का आप शॉर्ट ट्रेड लेके अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते थे। सो दिस इज कॉल्ड स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग मतलब होता है कि आप तुरंत मार्केट में आए, थोड़ी सी प्रॉफिट बुक की, 1000-2000 बनाए और आप मार्केट से बाहर। सो ये होती है स्कैल्पिंग। और फिर आप इसमें 15 मिनट्स टाइम फ्रेम जा सकते हो, विच इज़ वेरी पॉपुलर टाइम फ्रेम। इसमें आप देख सकते हो ये एक दिन की चार्ट है, 4-5 दिन की चार्ट है ये पूरी। 15 मिनट में आपको और ज़्यादा क्लैरिटी और ज़्यादा श्योरिटी मिलती है अपने ट्रेड्स को लेकर। 15 मिनट चार्ट इज़ वेरी पॉपुलर। उसके बाद 30 मिनट्स, जनरली 30 मिनट्स एंड 10 मिनट्स को यूज़ नहीं करता है। 1 मिनट, 3 मिनट एंड 5 मिनट इज़ फॉर स्कैल्पिंग। 15 मिनट इज़ फॉर लाइक डिसेंट ट्रेड, विच इज़ जो कि आप जिस ट्रेड में अराउंड 1 घंटा रुकते हो, 2 घंटा रुकते हो, स्टॉक्स में ट्रेड करते हो। बट ज़्यादातर जितने भी इंडेक्सेस हैं जो कि बहुत फास्ट मूविंग है, हाई वॉलेटिलिटी है, वी प्रिफर 5 मिनट्स और 3 मिनट्स।
फिर आर्ली चार्ट है, 1 आवर चार्ट, 4 आवर चार्ट एंड डेली चार्ट। डेली चार्ट में हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए सेटअप ढूंढते हैं। लाइक ये डेली चार्ट हम अगर देखें इसकी, तो आप देख सकते हो कि एक कैंडल एक दिन का है। सो वी हैव सो मैनी कैंडल्स। आप देख सकते हो मार्च फरवरी 2024 से लेकर अभी तक इस छोटी सी स्क्रीन में आ गया है। सो आप देख सकते हो ये कंसोलिडेट करके ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे करते करते नाउ इट इज़ ऑन अ बुल रन। सो आप देख सकते हो कुछ टाइम कंसोलिडेट किया निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक व्हाटएवर, और उसके बाद मार्केट ऊपर गया। सो आप देख सकते हो 3000 पॉइंट का एक बुल रन आया है। So one more thing I want to tell, daily time frame and weekly time frame is used for swing trading, which is very popular and most of the stock market traders do this. आप क्या करते हो, एक पोजीशन बनाते हो। फॉर एग्जांपल एक ट्रेडर ने यहाँ कहीं पोजीशन बनाई है और उसने एक लॉन्ग के लिए पोजीशन बनाई है और बहुत ज़्यादा बड़ा कैपिटल यूज़ किया है, एंड ही वेट्स फॉर अ कपल ऑफ डेज और यू कैन से अ वीक, और फिर उसने यहाँ पे पोजीशन काटी है। सो ही हैज़ मेड अ बिग अमाउंट, अ बिग प्रॉफिट ही हैज़ बुक्ड। वो होता है स्विंग ट्रेडिंग, जो कि कंपेरेटिवली ज़्यादा इजी है, बट उसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है। सो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स डोंट गो फॉर इट। जिसके पास कैपिटल है कुछ लैक्स में या कुछ सीआर में, वो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू रीड चार्ट। आई हैव टोल्ड यू द इंडिकेटर्स, 3 इंडिकेटर्स बेसिक, बाकी मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट सेटअप्स में। ऑल इंडेक्सेस आई हैव टोल्ड यू, जो इंडेक्सेस हैं सबकी एक्सपायरी होती है। हर वीक में एक इंडेक्स की एक्सपायरी है, और उस एक्सपायरी में इंडेक्सेस के जो रेट्स है वो बहुत स्ट्राइक प्राइसेस हैं, जो OTM है, ATM है, ITM है। OTM स्टैंड्स फॉर आउट ऑफ द मनी, ATM स्टैंड्स फॉर एट द मनी, ITM स्टैंड्स फॉर इन द मनी। सो वो बहुत सस्ते हो जाते हैं और हमें एक ज़ीरो हीरो स्ट्रैटेजी मिलती है, ट्रेड मिलता है, जिससे कि हम 10x प्रॉफिट कर सकते हैं, 10x लॉस भी कर सकते हैं। बट देन अगेन आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रॉफिट कर रहे हो कि लॉस कर रहे हो। सो लेट्स गो बैक टू दिस पेज। ऑप्शंस ट्रेडिंग, आई हैव टोल्ड यू ना, ऑप्शंस ट्रेडिंग। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस होते हैं आपके, एक होता है स्टॉक ट्रेडिंग। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं टाटा स्टील का स्टॉक, विच इज़ वेरी पॉपुलर, 174 मार्क पे जा रहा है। आप देख सकते हो, आप टर्मिनल में यहाँ पे क्लिक करो, तो आप देख सकते हो फरवरी के अराउंड ये डेली चार्ट है। सो ये स्विंग ट्रेडिंग है, जो कि रिच ट्रेडर्स यूज करते हैं। सो अराउंड फरवरी स्टॉक 135 पे प्ले कर रहा था, प्राइस एक्शन इसका। फिर आप देख सकते हो ये 44 मूविंग एवरेज है। कंटिन्यूसली इट हैज टेकन सपोर्ट एंड गॉन अप, सपोर्ट एंड गॉन अप, सपोर्ट एंड गॉन अप, और ये 184 तक गया था इलेक्शंस के बाद। इलेक्शंस के टाइम में 160 गया था, उसके बाद 184 गया था, और अभी ट्रेड कर रहा है 172। आप देख सकते हो इसने फिर से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाना शुरू किया है। सो एक होता है स्टॉक्स में ट्रेडिंग। स्टॉक्स में दो तीन तरह की ट्रेडिंग होती है। एक होती है नॉर्मल डिलीवरी ट्रेडिंग, जैसे कि हमने आज 1000 शेयर्स लिए टाटा स्टील के, और हम उसे 1 साल रखना चाहते हैं, 2 साल रखना चाहते हैं, पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, 20 दिन रखना चाहते हैं, उसके बाद बेचना चाहते हैं, तो वो डिलीवरी बेसिस पे होता है, जो कि बहुत सेफ है। अगर प्राइस गिरता है तो आप होल्ड कर सकते हो, फिर प्राइस जब ऊपर होता जाएगा तो फिर आप उसे बेच सकते हो। दैट इज़ वेरी सिंपल, ईजी एंड ऑलवेज प्रॉफिट मेकिंग। दूसरी तरह का ट्रेड होता है स्टॉक्स में इंट्राडे इक्विटी। वो क्या होता है, उसमें आपको 5 टाइम्स लेवरेज मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, आई कैन शो यू विद द कैलकुलेटर, फॉर एग्जांपल बाय, हाँ, दिस इज बेटर, ओके। सो आप देख सकते हो यहाँ पे एक डिलीवरी का ऑप्शन है, एक इंट्राडे का ऑप्शन अभी बंद है क्योंकि अभी रात है। यहाँ लिखा है इंट्राडे विल ओपन एट 9:15 AM ऑन 3rd जुलाई, ऑन 2nd जुलाई, ओके, ग्रेट। सो आप देख सकते हो
ये प्राइस लिमिट इसकी 181.9 जितने में ये अभी है, नहीं ये इसमें अभी नहीं है। सो यहाँ मैं अभी आपको क्लियरली नहीं बता पाऊँगा क्योंकि अभी मार्केट ओपन नहीं है, बट एक आपको ब्रीफ देता हूँ। ये डिलीवरी स्टॉक्स में मैंने आपको बताया ये लॉन्ग टर्म के लिए है, एंड इंट्राडे आपको 5 टाइम्स यहाँ पर लेवरेज देता है। अगर आप डिलीवरी स्टॉक्स में 100 स्टॉक्स खरीद सकते हो जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है, जो आपके पास पैसे हैं, जो आपके पास अमाउंट है, वो अमाउंट से अगर आप 100 शेयर्स खरीद सकते हो तो इंट्राडे में आप 500 शेयर्स इंटू 5 टाइम्स खरीद सकते हो। बट द कंडीशन इज़ कि आपको उसी दिन की खरीद के उसी दिन बेचने हैं, आप उसे होल्ड नहीं कर सकते हो। वो आपकी होल्डिंग्स नहीं है, वो आपकी इंट्राडे इक्विटी शेयर्स है। वेयर इज डिलीवरी यू कैन होल्ड, दैट इज़ योर होल्डिंग्स, और उसमें कोई लेवरेज नहीं मिलता है आपको, बट वो बहुत सेफ है। बट इंट्राडे सेफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टाटा स्टील अभी 174.07 पे है, सो अगर मैंने 1000 शेयर्स लिए डिलीवरी बेसिस पे, आज सुबह मार्केट खुली उसके बाद, और वो 174 से 170 हो गए उसका प्राइस, सो आई हैव टेकन 1000 शेयर्स, सो मुझे 4000 रुपीज़ की लॉस होगा, करेक्ट। बट जस्ट बिकॉज आई हैव टेकन दिस इन डिलीवरी बेसिस, लॉन्ग टर्म बेसिस, सो आई डू नॉट नीड टू वरी, मुझे डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जब प्राइस 170 से फिर से 171, 172 करते करते ऊपर जाते जाते जब 174 से ज़्यादा जाएगा और मेरे मन के अनुसार प्रॉफिट मिलेगी, तब मैं उसे एग्जीक्यूट करूँगा, उसे बेचूंगा। सो जस्ट मुझे कुछ टाइम उसे स्टॉक्स को होल्ड करके रखना होगा, बट आई विल नॉट एंड इन लॉस। वेयर एज इंट्राडे में क्या होता है, अगर 174 रुपीज़ का शेयर है, मैंने 1000 शेयर्स लिए हैं, और अगर वो शेयर 174 से 170 हो जाता है डे एंड तक, और मुझे वो शेयर सेल करना ही है एट एनी कॉस्ट, सो मुझे 4000 रुपीज़ लॉस बुक करके वो ट्रेड एंड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी वो होल्डिंग्स नहीं है और मैं उसे होल्ड नहीं कर सकता। सो यही डिफरेंस है डिलीवरी स्टॉक्स में, डिलीवरी ट्रेड में और इंट्राडे ट्रेड में। और एक होता है इंट्राडे इन स्टॉक्स, एंड द थर्ड इज हम क्या करते हैं स्टॉक्स में ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर सकते हैं। जैसे ये कि आप यहाँ चेन में क्लिक करो, आपको दिख जाएगा ये स्ट्राइक प्राइस है बाई साइड के और ये पुट साइड के। सो आप फॉर एग्जांपल मुझे ये 5.8 का स्ट्राइक प्राइस है और मुझे लेना है, और मुझे लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, सो मैं इसे बाई पे क्लिक करूँगा। आप देख सकते हो एक लॉट में 5500 क्वांटिटीज़ है, तो मुझे 5500 इंटू 5.8 इतना रुपीज़ एक लॉट लेने में लगेगा। एंड इफ़ ये 5.8 रुपीज़ 6 रुपीज़ या 6.35 हायर साइड पे जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगी, अगर ये लो हो गया तो फिर मुझे लॉस होगा। ये होता है ऑप्शंस इन स्टॉक्स। तो ये तीन चीज़ हमने देखा। फर्स्ट हमने देखा डिलीवरी बेसिस पे लॉन्ग टर्म, दूसरा इंट्राडे बेसिस पे वेयर वी हैव टू बाय एंड सेल ऑन इन द सेम डे, और तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है ऑप्शंस इन स्टॉक्स। सो ये तीन चीज़ें हमने देखी। इसे बंद कर देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, हाँ जैसे कि आप देख रहे हो कि ये स्टॉक्स का सेक्शन था, ये मोस्ट बॉट स्टॉक्स ऑन ग्रो, इसमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अराउंड 2500 स्टॉक्स हैं। उसके बाद आप नीचे आओगे, यहाँ पे एफ एन ओ इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है। सबसे पहले हम यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ लिखा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ऑप्शन चेन, ये सारे इंडेक्सेस हैं जो पॉपुलर इंडेक्सेस जिसपे की ट्रेडिंग होती है। उसके बाद इंडेक्स ऑप्शंस, ये सब है, ये स्ट्राइक प्राइजेस हैं, पर्टिकुलर 52,500 का, 12,300 का, कॉल एंड पुट है। इंडेक्स फ्यूचर्स, ये फ्यूचर है, फ्यूचर्स में मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं किया है, मैं हमेशा ऑप्शंस में करता हूँ। ये लेआउट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टॉक्स में भी ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है। जैसे कि ये टीसीएस का स्टॉक है, टीसीएस में कॉल, टाटा मोटर्स, मारुति, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, भारती एयरटेल, INFY। जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं, आपको एक क्लियर व्यू देता हूँ इसका। ये ऑप्शंस का स्टॉक चार्ट है। सो आप इसमें मिसअंडरस्टूड मत करना कि 91 रुपीज़ रेट है टीसीएस का, ये ऑप्शंस का चार्ट है।
और आप देख सकते हो TCS कंपनी का एक लॉट का साइज 175 रुपीज़ है, और ये 4000 की जो कॉल है, ये पर्टिकुलर ये नंबर का जो कॉल है, ये 91.3 रुपीज़ है। सो अगर हमें एक लॉट इसका लेना है एंड वी एज्यूम कि स्टॉक ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे। सो 175 इंटू 91 रुपीज़ हमें लगेगा एक लॉट बाय करने में, एक लॉट परचेज करने में। और फिर जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे हम प्रॉफिट बुक करेंगे अपने टारगेट अनुसार। सो ये 3 तरह की ट्रेडिंग थी, और आपको बता दिया मैंने कि इंडेक्सेस में कैसे होती है। तो सेम वैसे टाटा मोटर्स, मारुति, HDFC बैंक बहुत पॉपुलर बैंक है। इसका आप देख सकते हो 550 क्वांटिटी का एक लॉट है और 49.55 चल रहा है पर क्वांटिटी का रेट। सो आप उससे मल्टीप्लाई करके, रिलायंस बहुत पॉपुलर है, रिलायंस का 39 का ये स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, 3200 की कॉल वाला, और 250 का एक लॉट साइज है। सो आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके इतना आपका ये बाय सेक्शन है, ये सेल सेक्शन है। अगर आपको लगता है कि बाय करना है बाय करो, आपको लगता है सेल करना है तो सेल करो, बट दिस इज़ ऑन अ वेरी रिस्की साइड आई वुड से। सो मैं ज़्यादा ट्रेड करता हूँ इंडेक्स ऑप्शंस में, और मैं बाय करता हूँ। मैंने कभी सेल नहीं किया, मैंने शॉर्ट नहीं किया इंडेक्सेस। यहाँ लिखा है मार्केट ओपन्स एट 9:15 AM। सो ये हो गया फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इवेंट्स। अब इवेंट्स में क्या होता है कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि किस डेट पे क्या क्या इवेंट है। फॉर एग्जांपल ऑयल इंडिया एक्स बोनस डेट इज़ ऑन 2 जुलाई। 2 जुलाई तक जिसके पास भी ऑयल इंडिया का स्टॉक होगा उसे बोनस भी मिलेगा, और 2:1 रेशियो में ये स्प्लिट होगा। लिखा हुआ है फॉर एवरी 2 शेयर्स यू होल्ड यू विल रिसीव 1 एडिशनल शेयर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 1000 शेयर्स ऑफ ऑयल इंडिया है तो आपको 500 शेयर्स और मिलेंगे, आपके पास 1500 शेयर्स हो जाएंगे। सो वेरी गुड डील टू हैव। उसके बाद ये आप देख सकते हो ये डिविडेंड है, 5 रुपीज़ दे रहा है ये कंपनी एपिग्रेल। उसके बाद है ये क्वेस्ट कैपिटल, ये भी आपको 2.5 रुपये डिविडेंड दे रहा है। बहुत सारी कंपनीज यहाँ डिविडेंड देती हैं। सो ये काइंड ऑफ आपको बताता है ये स्टॉक इवेंट्स कि कब कहाँ क्या होने वाला है। देन इंट्राडे, इंट्राडे में क्या है कि आपको यहाँ पे टॉप इंट्राडे स्टॉक्स उस दिन के दिखते हैं जो कि ट्रेड हुए हैं। वोडाफोन, टाटा स्टील और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि टॉप इंट्राडे स्टॉक्स हैं। फॉर इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर डे में ये सारे स्टॉक्स ज़्यादा खरीदे गए हैं या तो बेचे गए हैं। उसके बाद हम चलते हैं IPO सेक्शन में। IPO स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब IPO क्या होता है कि किसी भी कंपनी को जब अपने आप को रजिस्टर करना होता है और मार्केट में लॉन्च होना होता है, वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स में अपने आप को अप्लाई करता है। सो यू कैन सी नेफ्रो केयर है, उसके बाद और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स क्लिक ऑन दिस। इसका क्या है, ये 1600 शेयर्स का एक लॉट है, ठीक है, और पर्टिकुलर शेयर आपको 85 to 90 रुपीज़ का प्राइस रेंज है जो कि आपको मिलेगा, एक बिडिंग प्राइस है, और टोटल ऑफ 1,36,000 का एक लमसम अमाउंट है जो कि आपको बियर करना होगा एक लॉट लेने के लिए। उसके बाद जब ये मार्केट में रजिस्टर हो जाएगा तो फिर अगर ये 85 to 90 रुपये के से हाइयर प्राइस में लिस्ट हुआ तो आपको प्रॉफिट होगी, अगर उससे कम लिस्ट हुआ तो आपको लॉस होगा। सो दिस इज होल्डिंग एंड प्योरली लाइक आपको इस पर रिसर्च करनी है, इस स्टॉक पे जो लिस्ट होने वाला है। आपको बहुत अच्छा से मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, आपको न्यूज़पेपर्स देखने हैं, आपको इसकी लास्ट 10 ईयर्स की बैलेंस शीट्स देखनी है। लाइक नेफ्रो केओ इंडिया फाउंडेड इन 2014 इन कोलकाता, ऑफर्स मेडिकल सर्विसेज फॉर द rental patients. It is treatment center for clinical and lifestyle solutions for rental inefficiencies. आपको देखना है कि मैनेजिंग डायरेक्टर MD कौन है, पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनकी वीकनेसेस क्या है। सो एवरीथिंग इज गिवन हियर, जस्ट यू हैव टू रीड दिस, हैव अ लुक, मेक डिसीजंस एंड देन यू कैन बाई। फाइनेंशियल्स इसके आप देख सकते हो, नीचे में फाइनेंशियल्स हैं। लैपटॉप हैंग कर रहा है।
उसके बाद नीचे फाइनेंशियल्स हैं। फाइनेंशियल्स में आपने क्या देखना है, 2021 में 1.82 CR का इसने रेवेन्यू जनरेट किया, फिर 2022 में उससे बढ़कर 3.42 हुआ और अभी 18 है। सो ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ है। सो मोस्ट प्रोबेबली आपको प्रॉफिट होने के चांसेस है, मोस्ट प्रोबेबली, हु नोज, होप फॉर द बेस्ट। टोटल एसेट्स आप भी देख सकते हो कंसिडरेबली चेंज, बहुत इंक्रीज हुए हैं। प्रॉफिट्स आप देख सकते हो, प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हुई है इसे कंपेयर टू द रिसेंट ईयर्स। उसके बाद आप ये इसकी रेगुलर एंड हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, ये सब आप पैरामीटर्स देख कर ही आप डिसीजन ले सकते हो कि आपने ये स्टॉक लेना है या नहीं लेना है। सो ये कभी कभी बहुत प्रॉफिट भी देता है, कभी कभी लॉस भी करता है। सो इट डिपेंड्स कि आप कितने रिस्क पे करें। सो ये होता है IPOs। जैसे कि आज के डेट में टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, वोडाफोन, जितने भी शेयर्स हैं उन्होंने सबने अपना IPO लॉन्च किया था, तब उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है सेबी में और उन्होंने बहुत प्रॉफिट बनाई है कंसिडरेबल ईयर्स में। फिर हम देखते हैं स्क्रीनर। ये क्या है, ये फिल्टर है। ये क्या करता है कि आप देख सकते हो यहाँ सेक्टर वाइज जितनी भी कंपनीज है उसको आपको फिल्टर करके देगा, इंडेक्सेस को फिल्टर करके देगा, मार्केट कैप्स को फिल्टर करके देगा, जिससे कि बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए कोई भी स्टॉक को एनालाइज करना और कोई भी सेक्टर के स्टॉक्स को। फॉर एग्जांपल वी नो कि इफ बैंक स्टॉक्स आर ऑन द हायर साइड, अगर बैंक स्टॉक्स बुल रन में है तो सब सारे बैंक के स्टॉक्स बुल रन में होंगे। अगर एग्रीकल्चरल बुल रन में है तो एग्रीकल्चरल स्टॉक्स सारे बुल रन में होंगे। बैंकिंग हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, फाइनेंस हो गया, एनर्जी हो गया। सो जैसा एक परफॉर्म करेगा बाकी भी उस सेक्टर के वैसे ही परफॉर्म करते हैं, मोस्ट प्रॉबेबली वैसे परफॉर्म करते हैं। और उसके नीचे क्या है, टॉप गेनर्स। फिर हमें क्या हेल्प होती है इस ऐप से कि सुबह में हमें पता चल जाता है कि कौन टॉप गेनर्स हैं लार्ज कैप में, मिड कैप में एंड स्मॉल कैप्स में। लार्ज कैप कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैप या मार्केट कैपिटल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। मिड कैप मीडियम में होता है, स्मॉल कैप्स आर द स्मॉल कंपनीज जिसका स्मॉल में होता है। ठीक है, ये हो गया मिड कैप एंड दिस इज स्मॉल कैप, यू कैन से। उसके बाद स्टॉक्स इन न्यूज़। सो अब क्या होता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस, वन इज फंडामेंटल एनालिसिस एंड वन इज टेक्निकल एनालिसिस। तो मैं आपको अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की सब टेक्निकल एनालिसिस था, चार्ट से लेकर जितने भी और अलग अलग मैंने चीज़ें आपसे शेयर की हैं। वन इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। अब क्या है कि पुराने जो लोग थे, पीपल हु यूज टू ट्रेड 20 ईयर्स बैक एंड जो हर्षित मेहता के टाइम के लोग थे, वो क्या करते थे, वो न्यूज़ देखकर, फंडामेंटल एनालिसिस देखकर स्टॉक्स कैसा परफॉर्म किया है पिछले कुछ सालों में, उसकी बैलेंस शीट देखकर उसे कौन मैनेज कर रहा है, कौन मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो सब सारे पैरामीटर्स देखकर स्टॉक्स लेते थे। और आज क्या है कि आज हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस की भी सपोर्ट है। सो स्टॉक इन न्यूज़ यही है कि हमें कुछ कुछ न्यूज़ मिलती रहती है कि किस स्टॉक में क्या हो रहा है, कहाँ कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कौन सी मीटिंग है, कहाँ कुछ क्या चीज़ लॉन्च हो रही है। सो दीज वर द थिंग्स। टॉप लूजर्स भी जैसे टॉप गेनर्स था, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। सो ये है टॉप सेक्टर्स, बैंकिंग 37 टॉप सेक्टर्स। ये सारे इतने सारे स्टॉक्स के एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर रहा है बैंकिंग, एनर्जी, हेल्थ केयर, FMCG, ऑटोमोबाइल, टेलीकम्युनिकेशन एंड मीडिया एंटरटेनमेंट। टॉप बाय मार्केट कैप किसकी बड़ी है, एवरीवन नोज, वन एंड ओनली रिलायंस इंडस्ट्रीज। उसके बाद TCS, HDFC बैंक, बहुत बड़ा बैंक है, ह्यूज बैंक। भारत एयरटेल, ICICI बैंक, SBI, इन्फोसिस, LIC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC। सो ये सारा आपको डाटा मिल जाएगा इस पेज पे। उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड सेक्शन हमारा ऐसा है, ये स्टॉक्स है, दिस इज ट्रेडिंग सेक्शन, पूरा पेज ट्रेडिंग का है। ये है स्टॉक्स, ये है म्यूचुअल फंड। सो ये पूरा सेक्शन आप देख रहे हो, ये म्यूचुअल फंड का है। सो आई विल टेल यू वन बाय वन म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, इसे कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, इसका रिटर्न क्या होता है एंड ऑल दैट। आप देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप्स है जो 40% रिटर्न इन 3 years। उसके बाद पराग फ्लेक्सी कैप
फंड डायरेक्ट है जो 21.8% दे रहा है, एक्सिस स्मॉल 25.8 दे रहा है। एक्सिस स्मॉल मैंने ली भी हुई है, आपको मैंने दिखाया था। सो ये आप देख सकते हो, हाई रिटर्न्स SIP विद 500, ये सब एक सेक्शन है। लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। लार्ज कैप कंपनीज वो होती हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा मार्केट कैप रहता है, उससे कम मिड कैप, फिर स्मॉल कैप। फॉर एग्जांपल मेरा इन्वेस्टमेंट जो है, डैशबोर्ड पे चलते हैं, थोड़ा सा एक बाइट ले लेते हैं उसकी। मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट, आई हैव इन्वेस्टेड 34,298 टिल डेट, और देख सकते हो आप 20.59% रिटर्न मिल रहा है। आज थोड़ा सा और ज़्यादा रिटर्न मिला है मुझे। सो टोटल मेरा 7,063 रुपीज़ का रिटर्न हो रहा है। XIRR 44.16%। सो आप देख सकते हो कि 20.59, मेरा 19 चल रहा था, अभी 20.59 चल गया है। सो कि इसका मतलब बहुत अच्छा बुलिश है मार्केट। और आप देख सकते हो कि फंड्स मैंने कौन कौन सी ली हुई है। 4 टैक्स सेवर ली हुई हैं, और ये 3 जस्ट फॉर चेकिंग पर्पज़ के लिए ली हुई हैं। इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट कुछ ज़्यादा नहीं किया है अभी तक। और पोर्टफोलियो एनालिसिस देख लेते हैं। पोर्टफोलियो एनालिसिस में इन्वेस्टेड 34 समथिंग एंड 41 समथिंग इज रिटर्न। ओवरव्यू आप देख लेते हैं। 100% इक्विटी मैंने बाई की हुई है, ना डेट ली है, ना हाइब्रिड ली है, ना अदर्स ली है। मैं बताता हूँ आपको, आई टेल यू कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती है। और नीचे अगर इक्विटी एसेट्स एलोकेशंस में जाए तो फाइनेंशियल्स में सबसे ज़्यादा 26% लिया हुआ है, फिर एनर्जी में, कंज्यूमर स्टेपल्स, उसके बाद हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, अदर सेक्टर्स, ये सब में। सो ये एक आपको ओवरव्यू बताता है कि आपका कौन सा म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब फॉर न्यू बिगनर हु वांट टू गो फॉर बाइंग म्यूचुअल फंड, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड बाय करना है तो आप उसको एनालाइज करना होगा कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, मेरे लिए सही है रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे जो अमाउंट मैंने इन्वेस्ट करना है वो मुझे तुरंत विड्रॉल करना है, कि वो अमाउंट मेरा एक्स्ट्रा है और मैं विड्रॉल पीरियड को 2-4 दिन बियर भी कर सकता हूँ, या फिर मुझे तुरंत विड्रॉल चाहिए इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। ये हमें डिसाइड करना होगा सबसे पहले। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम म्यूचुअल फंड्स को एज एन इमरजेंसी फंड नहीं रख सकते हैं। इमरजेंसी फंड्स के लिए हमें लिक्विड म्यूचुअल फंड्स लेना होगा जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 से 8% होता है, बट आपको कुछ ही घंटों के अंदर आपका फंड, आपका इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाएगा। वेयर एज म्यूचुअल फंड्स में आपको 1 से 2 दिन लग जाते हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 15, 16, 17, 18% के लगभग होता है ईयरली पर एनम बेसिस। सो यही डिफरेंस है लिक्विड फंड्स एंड नॉन लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स आर द इमरजेंसी फंड्स जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, बट आपको 2-3 घंटे में पैसे मिल जाते हैं। वेयर एज नॉन लिक्विड फंड्स जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, अराउंड 18%, 19%, बट आपको 1-2 दिन का वेटिंग पीरियड लगेगा, फिर ही जाके आपके इन्वेस्टमेंट, आपका जो अमाउंट है वो आपके बैंक में आएगा विड्रॉल करने के बाद, रिडीम करने के बाद। सेकेंड थिंग, उसमें एग्जिट लोड का एक क्लॉज होता है। अगर आप लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो देयर इज़ नो एग्जिट लोड, मतलब आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, आप कभी भी निकाल सकते हो। वेयर इज अगर आप म्यूचुअल फंड्स जो कि हाई रिटर्न दे रहे हैं उसमें आपको मिनिमम 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्टेड रहना होगा। अगर आप 12 मंथ्स के पहले अपना म्यूचुअल फंड रिडीम या विड्रॉल करने की कोशिश करते हो तो आपको 1% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट आपको बियर करना पड़ेगा, विच इज़ आई थिंक मोर, बट ये तो आपको बियर करना ही पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चलते हैं इस फंड पे, फॉर एग्ज़ाम्पल इस फंड में नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले क्या करते हैं हम चलते हैं इस पे। सो जब आप इस पेज पे आओगे, व्हेन यू विल कम टू म्यूचुअल फंड सेक्शन, सबसे पहले आप स्क्रीनर में जाओगे। स्क्रीनर में आपको दिखेगा कि देयर आर 1559 म्यूचुअल फंड्स। इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, कैन यू इमेजिन। सो आप किस में इन्वेस्ट करोगे, किस में नहीं करोगे। सो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, मुझे भी होता था पहले, बट टाइम के साथ साथ आपको पता चल जाएगा। सो क्योंकि हर एक सारे म्यूचुअल फंड्स सबके लिए सही हो ना हो, सो ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कैटेगरीज पे आपको आना है। सबसे पहले कैटेगरीज में आप देख सकते हो डेट फंड्स, इतने सारे, PSUs बैंकिंग, PSUs कॉर्पोरेट बैंक, क्रेडिट रिस्क, डायनेमिक बॉन्ड, फ्लोटर,
FMP ग्लिट 10 ईयर्स लिक्विड। ये जो लिक्विड मैंने बात की थी ना अभी, ये लिक्विड है। ये क्या है कि इसमें नो एग्जिट लोड एंड आप जब भी विड्रॉल करना चाहो कर सकते हो, आपको 2-3 घंटे में पैसे मिल जाएंगे। आपका अमाउंट ओवरनाइट, शॉर्ट ड्यूरेशन, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन। आप सोच सकते हो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन कितनी होती है? विद इन एन आवर। फॉर एग्जाम्पल ये देखते हैं लिक्विड फंड्स। अब आप देख सकते हो लिक्विड फंड्स कितने हैं, 44 म्यूचुअल फंड्स हैं विच आर लिक्विड। लिक्विड मतलब क्या है, आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हो। रेट, सी द रेट ऑफ इंटरेस्ट 7, 7.5, 8%। कैन यू इमेजिन? नाउ कैन यू इमेजिन एनीवन wants to invest in stock market mutual funds and want to get a return of 8%, 7%, 8%? और देखिए 3 years and 5 years में कंसिडरेबली और कम हो गया। सो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। इट्स लाइक पोस्ट ऑफिस, इन्वेस्टिंग इन पोस्ट ऑफिस और इन्वेस्टिंग इन बैंक, जो कि 6-7% के इंटरेस्ट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, बट वो भी काइंड ऑफ लिक्विड है और आपको जब भी मन करता है आप जाकर फॉर्म भर कर विड्रॉल कर लेते हो। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने टोटल अमाउंट का कुछ परसेंटेज इमरजेंसी फंड्स में रखो, ताकि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशंस, मेडिकल सिचुएशंस में आप उसे विड्रॉल कर सको। अराउंड 20%, 30% रखो, दैट इज इनफ। एंड नेक्स्ट जो आपके 70% है वो आप लार्ज कैप्स, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, विच इज़ रियली गुड। सो आप देख सकते हो आदित्य बिरला, ग्रो, प्राग, पारिक, क्वांट, महिंद्रा, LIC, SBI। सो ये सब सारे फंड्स हैं जो कि लिक्विड है। अब हम इसे अनटिक करते हैं। आप देख सकते हो नीचे यू कैन सी ये है इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स में कॉन्ट्रा, डिविडेंड या ये लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, मल्टी कैप्स, स्मॉल कैप्स, ये सारे फंड्स हैं। फॉर एग्जांपल लार्ज कैप्स बहुत अच्छे प्रॉफिट देते हैं। आप देख सकते हो निपॉन इंडिया लार्ज कैप 40% की प्रॉफिट दे रहा है। सो लेट्स गो एंड सी, 40% is a good profit. 1 lakh rupees will become 1.4 lakh rupees in a period of 1 year, which is very good return on your investment. So हमें क्या करना है, हमें क्लिक करके उस पेज में आना है जिसका हमें एनालिसिस करना है, और हम चाहते हैं कि हम वो म्यूचुअल फंड लें। सो आप देख सकते हो आपको क्या करना है कि यहाँ आके 1 ईयर में क्लिक करना है। सो 40% इट हैज़ गिवन इन लास्ट 1 ईयर। आप 6 मंथ्स का देख लो 18%, आप 1 मंथ का देख लो 6%, विच इज़ फेयरली हाई। आप 5 ईयर्स का देख सकते हो 20%, एंड ओवरऑल आप 17%, हाँ 17-18% इज़ अ गुड रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट। सो अच्छा है ये फंड, आई विल नॉट रिकमेंड इट। आप अपनी एनालिसिस से देख सकते हो। इसको रेटिंग 4 मिली हुई है। इसका फंड साइज आप देख सकते हो 26,925.1 CR रुपीज़ मिला है, और इसका आप एनालिसिस भी कर सकते हो। यहाँ मंथली SIP है और 1 टाइम SIP है। मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था जो कि बहुत वायरल हुआ है, ऑन हाउ टू वाई यू शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स एंड लमसम्स SIPs। और मैंने बताया था कि 1 करोड़ रुपीज़ कितना बन रहा, मैंने क्या बताया था कि 1,000 रुपीज़ 30 ईयर्स में 18% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट में मुझे 1.43 करोड़ रुपीज़ दे रहा था। 1,000 SIP विल गिव 1.43 करोड़ रुपीज़ इन द स्पैन ऑफ 30 ईयर्स। अब इसे देखते हैं ना, रिटर्न कैलकुलेटर है, यही देखते हैं। ये अगर मैंने 1,000 रुपीज़ 1 ईयर के लिए नहीं, ये मैं 5 ईयर्स के लिए करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 ईयर्स के लिए 1,000 रुपीज़ कर दूँ मंथली SIP, सो आप देख सकते हो इट वुड बी 1,60,000, 1,09,000। ये कंपाउंडिंग हो गए 83% ऑफ रिटर्न दे रहा है 5 ईयर्स में, कंपाउंडिंग हो गया, विच इज़ रियली गुड। 1 ईयर आप देख लो 19%, 14,000 रुपये हो गए हैं, 83 रुपीज़। सो आपको लार्ज कैप, मिड कैप, वेरी रिस्क, आप देख सकते हो यहाँ लार्ज कैप लिखा हुआ है, वेरी रिस्क, वेरी हाई रिस्क, एंड इक्विटी लिखा हुआ है। और आप देख सकते हो 59 कंपनीज में इसकी होल्डिंग्स है, 59 कंपनीज। व्हाट म्यूचुअल फंड इज, म्यूचुअल फंड्स आर फंड्स विच इन्वेस्ट योर मनी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स आफ्टर अ गुड एनालिसिस ऑफ द मार्केट, so that they can give considerably good returns, और उस पैसे से आपको फिर आपका रिटर्न मिलता है
जैसे जैसे फंड्स परफॉर्म करती हैं वैसे वैसे आपको उसका रिटर्न मिलता है। सो ये आप देख सकते हो कि इक्विटी में 99.3% एंड कैश में 0.7% इसने इन्वेस्ट किया है। ये फंड कौन सी है? ये फंड है निपॉन लार्ज कैप फंड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। सो आप और देख सकते हो इसकी होल्डिंग्स, इसकी फाइनेंशियल सेक्टर एलोकेशंस, फाइनेंस में 33% है, अदर्स में 15, एनर्जी, कंज्यूमर है। और फिर आप देख सकते हो एडवांस एवरेज, टॉप 5, टॉप 20। आप मिनिमम 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज़ 100 रुपीज़, जो कि बहुत अच्छा है। आप रैंकिंग एंड रिटर्न्स भी देख सकते हो। 1 ईयर में 40% एंड वैसे साइमल्टेनियसली आप उसे कंपेयर कर सकते हो। पीयर कंपैरिजंस, इसी के कंपैरिजन में कौन कौन है वो सब देख सकते हो। और उसके बाद दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी मैंने एक शॉर्ट बनाया था जो वायरल हुआ था। एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स। अब क्या है, देयर इज़ अ क्लॉज ऑफ एक्सपेंस रेशियो। अब जो भी आपके फंड मैनेजर्स हैं जो कि आपका फंड मैनेज कर रहे हैं वो आपसे 0.74% आपसे चार्ज करेंगे, इंक्लूडिंग जीएसटी है ये अमाउंट, जो कि वो मेंटेनेंस फी लेते हैं। सेकंड इज एग्जिट लोड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम विद इन 7 डेज। इसमें क्या है कि 7 डेज में अगर आप रिडीम करते हो तो 1% आपको एग्जिट लोड बियर करना पड़ेगा। स्टैम्प ड्यूटी लगती है जो कि रिवाइज हुई थी जुलाई 1 2020 में। टैक्स इम्प्लीकेशंस है कि रिटर्न ऑन टैक्स एट 15% इफ़ यू रिडीम बिफोर 1 ईयर। 1 साल से पहले करते हो तो टैक्स का ये करना पड़ेगा। आफ्टर 1 ईयर यू रिक्वायर्ड टू पे LTCG टैक्स ऑफ 10% ऑन द रिटर्न ऑफ 1 लाख प्लस इन फाइनेंशियल, ये सब है। और फंड मैनेजर आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर ये फंड जो है हमारा, जो हम देख रहे हैं निपॉन लार्ज कैप है। सो निपॉन लार्ज कैप को आप देख सकते हो कि शैलेश राज हैं जो कि इनके फंड मैनेजमेंट में है। इनका डिटेल्स आप देख सकते हो कि इन्होंने क्या किया है, ये कितना एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं एंड ऑल दैट। उसके बाद आप देख सकते हो कि एक और है जो कि है आशुतोष जी, फंड हाउसेस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, रैंक 4th है इसका। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 95 में आया था। सो वैसे ही है। उसके बाद है बेंच हाउस कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अदर प्लान्स इन द सेम फंड, कंपेयर करना है। FAQs भी है इसमें। सो ऐसे कोई भी आपने फंड को एनालाइज करना है। सो देयर आर सो मैनी फंड्स आर देयर, यू कैन एनालाइज। लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, हाइब्रिड है। सो मिक्सअप ऑफ ऑल फंड्स क्या करती है, फंड्स आपके पैसा ले, आपका जो अमाउंट है उससे लेकर दूसरे कंपनीज़ में जो कि प्रॉफिटेबल कंपनीज़ हैं, जो कि उन्हें लगता है कि आने वाले टाइम पे ग्रो करेंगी, उस पर इन्वेस्ट करती हैं और उससे जो रिटर्न मिलता है वो आपको देती हैं। सो दैट इज़ व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। उससे क्या होता है कि आपको अपना माइंड यूज़ नहीं करना पड़ता है, सिंपली यू हैव टू मेक इंस्टॉलमेंट्स, ऑटो कट हो जाते हैं वो भी। आराम से एफर्टलेसली आप इंस्टॉलमेंट्स दो, SIP करो, इन्वेस्ट करो। और जो फंड मैनेजर्स हैं बड़े बड़े पर्टिकुलर फंड्स के, उनका काम है ऑन डे टू डे बेसिस मॉनिटर करते रहना अपने फंड्स को, अपने कैपिटल को अच्छे अच्छे स्टॉक्स में लगाना और प्रॉफिट फेच करना और उसका रिटर्न आपको देना। सो दिस इज़ व्हाट। अब आप देख सकते हो यहाँ SIP है जो 15, 25 है, फिर वन टाइम भी है। वन टाइम इज़ लाइक लमसम मैंने बताया था आपको कि आप इन केस आपको बोनस मिलता है या आपके पास कुछ अमाउंट आता है 20,000, 50,000, 1 लाख, 50 लाख, 20 लाख, जितना भी आप एक बार इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप एक बार इन्वेस्ट कर सकते हो, वो होता है लमसम। देख सकते हैं ये जो आदित्य बिरला फंड है, इसका 1 ईयर रिटर्न यू कैन इमेजिन, इसका 1 ईयर रिटर्न 95% है, which is huge। सबका वही रहेगा फिर। सो इसका फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि उसका 7 डेज था। इसका एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम विद इन 30 डेज, उसका 7 डेज था। सो डिफरेंट फंड्स हैव डिफरेंट क्राइटेरिया। इसे बंद करते हैं। सो ये है हुआ आपका ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड्स। बहुत सारे अच्छे हैं म्यूचुअल फंड्स इसमें। सो वो आपको कंपेयर करना है और फिर यू कैन गो फॉर इट। अगर आपके लिए और इजी बनाऊँ तो आप क्या कर सकते हो,
यहाँ SIP कैलकुलेटर है नीचे, जो कि मैंने एक शॉर्ट्स में दिखाया था आपको, फिर से एक बार दिखा देता हूँ, सो दैट यू गेट मोटिवेटेड टू इन्वेस्ट एंड यू गेट टू नो द इम्पोर्टेंस वाई यू हैव टू इन्वेस्ट। मैं यहाँ आपको 3 एग्जाम्पल दूंगा, 3 एग्जाम्पल्स ऑफ SIP, 3 एग्जाम्पल्स ऑफ लमसम। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान एक महीने में 10 से 15,000 रुपये कमाता है और वो चाहता है कि उसके पास 1,000 रुपीज़ सेव हो रहे हैं और वो कहीं इन्वेस्ट करे। सो अगर आप 1,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करते हो, आपने रिटर्न देखा, कोई 40% रिटर्न दे रहा है, कोई 20% दे रहा है, कोई 18% दे रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिक्विड फंड्स जो 7-8% देते हैं। सो लेट्स एज्यूम कि 18% आपको रिटर्न मिल रहा है और आप उसे 30 ईयर्स के लिए रखना चाहते हो। एज्यूमिंग कि उस इंसान जो 10-15 हज़ार रुपये कमा रहा है, फॉर एग्जांपल उसकी नई जॉब लगी है, वो जस्ट ग्रेजुएटेड हुआ है, नई जॉब लगी है, वो 30-35 ईयर्स के लिए रखना चाहता है और जस्ट उसके पास 1,000 रुपीज़ बच रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि 1,000 रुपीज़ ही शुड इन्वेस्ट ऑन समथिंग कंस्ट्रक्टिव सो दैट उसका पास कुछ अच्छा अमाउंट रहे व्हेन एट द टाइम ही रिटायर्स। सो आप देख सकते हो 1,000 रुपीज़ 18%, 30 ईयर्स, आप 3,60,000 आपने किया इन्वेस्ट और रिटर्न के साथ आपका टोटल वैल्यू 1,43,000, वो जो मैंने शॉर्ट्स में आपको बताया था। सेकेंड एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, सेकेंडली, आज आपकी इनकम है अराउंड 50-60,000 और आपके पास 10,000 रुपीज़ सेव हो रहे हैं और आप सोच रहे हो इसे इन्वेस्ट करने का। सो देखो 10,000 रुपीज़ 18% इंटरेस्ट 30 ईयर्स के लिए कंपाउंडिंग होकर आपके कितने बन रहे हैं, 14 CR, 32,000। सो 14 करोड़ 32 लाख रुपए, विच इज़ ह्यूज, 10,000 पर मंथ फॉर 30 ईयर्स। सो आपका रिटायरमेंट प्लान बहुत अच्छा है, वेरी गुड रिटायरमेंट प्लान यू हैव इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग 10,000 रुपीज़ फॉर 30 ईयर्स। 14-15 करोड़ रुपए मिल रहे हैं आपको। ऑल्दो 30 ईयर्स के बाद सम पीपल विल टेल कि इन्फ्लेशन भी बहुत हिट करेगा। ओके, 15 करोड़ रुपीज़ अगर उस टाइम वैल्यू 15 करोड़ की अगर 5 करोड़ भी रह जाती है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग अमाउंट एंड इट्स गुड। और थर्ड कैटेगरी में अगर आप 1.5 लाख 2 लाख पर मंथ कमाते हो और फॉर एग्जांपल आप 20,000 रुपीज़ सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का, सो 20,000 रुपीज़ 18% पे आपका 20 लाख 9 CR बन रहा है, विच इज़ वेरी गुड। सो ये 3 एग्जाम्पल्स थे आपके SIP के जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप खुद देख सकते हो अपने SIP कैलकुलेटर पे। 1-2 साल में रिटर्न्स बहुत कम दिखेंगे, बट आप अगर 10 साल 20 साल 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। द सेकंड इज़ लमसम। लमसम में क्या होता है कि कभी हमारा कभी बोनस के पैसे आते हैं, हमारे कभी LIC मैच्योर हो जाती है, उसके पैसा आता है, कभी और भी बहुत सारे हमें पर्क्स एंड बोनसेस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 लाख रुपीज़ आपके पास आया है कहीं से और आप उसे इन्वेस्ट करते हो 30 साल के लिए, तो मैंने दिखाया था अपने शॉर्ट्स पे कि 1 लाख रुपी 1.43 CR बन जाता है। वन टाइम आपको इन्वेस्ट करना है और उसे छोड़ देना है, भूल जाना है 30 सालों के लिए, और आपके रिटायरमेंट तक 1.5 करोड़ रुपया 1.43 CR रेडी हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है। इन केस अगर आप कभी होता है हमारे पास 10,000 रुपीज़ पड़े रहते हैं एंड वी थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग, देन वी एंड अप स्पेंडिंग इट ऑन आवर शॉपिंग और समथिंग। अगर आप चाहते हो कि 10,000 रुपये, जस्ट 10,000 रुपये अगर आप डाल के छोड़ देना चाहते हो 30 साल के लिए, तो 10,000 रुपये भी आप देख सकते हो 14 लाख रुपये बन जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा है, गुड डील। और उससे भी कम अगर आप चाहते हो कि वो 1,000 रुपये आपके पास है और 1,000 रुपये आप डाल के छोड़ देना चाहते हो, जस्ट 1,000 रुपीज़ 18% 30 साल के लिए, तो वो भी 1,43,000 रुपीज़ बन जाएंगे 30 साल के बाद। तो आप देख सकते हो 1,000 रुपये अगर डाल के एक बार छोड़ दोगे तो वो 1,43,000 बन जाएंगे। सो आप देख सकते हो पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और अगर आप 10 लाख करते हो तो 14.33 CR। सो यही है कैलकुलेटर जो कि आप यूज़ कर सकते हो और उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो कि हमें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। और यहाँ देख सकते हो कि और भी पॉपुलर कैलकुलेटर्स हैं, जैसे कि SIP हमने देखा है, लमसम खोल के देखते हैं, लमसम भी हमने देख लिया है। उसके बाद कौन सा है,
उसके बाद SWP कैलकुलेटर है। SWP स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बंदे रिटायर हुए हैं और चाहते हैं कि हम कुछ अमाउंट हमारे पास है, हमें मिला है PF का या कुछ ग्रेजुएटी मिली है, और हम उसे एक जगह इन्वेस्ट कर दें और हमें हर मंथ, हर महीने कुछ कुछ अमाउंट आता रहे, जिससे कि हम अपना डे टू डे लाइफ इजीली स्पेंड कर सकें। तो वो आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लाख रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किया और हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमें जस्ट 2000 रुपीज़ मिलता रहे एक्सपेक्टेड रिटर्न। फॉर एग्ज़ाम्पल 10% मिल जाता है इसमें। सो 5 ईयर्स के लिए, सो फाइनल वैल्यू विल बी 5 लाख। सो एवरी मंथ हमें 2000 मिलता रहेगा, एज सेम पोस्ट ऑफिस में जैसा होता है या बैंक में होता है। सो हमारा 5 लाख का जो कैपिटल है, जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट है जो हमने इन्वेस्ट किया है, हमें 2000 एवरी मंथ मिलेगा, प्लस हमारा जो 5 ईयर्स के बाद जो हमारा प्रिंसिपल है वो 6,52,000 हो भी जाएगा, वो भी हमें मिलेगा। और हमने 5 साल में 1.2 लाख रुपीज़ विड्रॉल भी कर लिया है, जो कि हमारा पॉकेट मनी का काम करेगा या फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस का काम करेगा। म्यूचुअल फंड रिटर्न कैलकुलेटर है, उसके बाद सुकन्या कैलकुलेटर, इनकम टैक्स कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर, EPF कैलकुलेटर, FD कैलकुलेटर। FD में दिखा देता हूँ आपको कि वाई आई विल नॉट रिकमेंड यू टू गो फॉर FD। अब FD में क्या होता था कि हमारे एंसेस्टर्स, हमारे फादर्स, फोरफादर्स, हमारे गार्जियंस हमेशा FD करते थे। 1 लाख, 2 लाख, 50 lakhs, 1 CR, और टू कीप द मनी सेफ, और कुछ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिटर्न भी मिल जाता था। FDs पहले कम टाइम में डबल होती थी, उसके बाद आज अभी 6.5% रिटर्न पे आप देख सकते हो कि बहुत साल लग जाते हैं डबल होने में। सो अगर आप 1 लाख रुपीज़ 6.5%, जो कि बहुत कम है, आप करते हो इसे 5 ईयर्स के लिए, तो आपका टोटल वैल्यू होगा 1,38,000, जो कि बहुत कम है। सो आई विल नॉट रिकमेंड यू फॉर FD, नेवर। उसके बाद आप देख सकते हो पोस्ट ऑफिस FD है, द सेम 7% रिटर्न होगा वहाँ, यहाँ 6.5 है, उससे ज़्यादा क्या होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, कॉर्पोरेशन, सो जितने भी बैंक्स हैं 6 to 8% वैरी करता है। सो यू वोंट बी गेटिंग मच रिटर्न्स। उसके बाद RD कैलकुलेटर है, EMI कैलकुलेटर, GST कैलकुलेटर, बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं, सब बैंक्स के अपने अपने कैलकुलेटर्स हैं। सो यही है। फिक्स डिपॉजिट है, टाइप्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स। सो ये सारा आप देख सकते हो। ग्रो कैलकुलेटर प्रोवाइड करता है आपको, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है। हम आते हैं इस सेक्शन पे, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हमेशा बोला जाता है बाय मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, जो इन्वेस्टर्स जो हैं वो बोलते हैं कि हमें स्मॉल कैप्स में कम इन्वेस्ट करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू मिड कैप्स, और उसमें कम इन्वेस्ट करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप्स। लार्ज कैप्स क्या है, लार्ज कैप्स ज़्यादा सेफ होते हैं, मिड कैप्स थोड़े से ज़्यादा रिस्की होते हैं, और स्मॉल कैप्स और ज़्यादा रिस्की होते हैं। लार्ज कैप्स में हमारे पास ये UTI निफ्टी, निप्पन, DSP, ICICI, ये सारे फंड्स हैं जो कि कंपेरेटिवली लेस रिस्क हैं। मिड कैप्स थोड़ा सा ज़्यादा है, उनका रिटर्न भी बहुत थोड़ा सा ज़्यादा है, एंड स्मॉल कैप्स ज़्यादा और रिटर्न है, बट रिस्क भी ज़्यादा है। टैक्स सेवर्स के साथ एक क्लॉज है जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, सेव अप टू 46,000 अंडर 80C, एंजॉय हाई रिटर्न्स एंड शॉर्टेस्ट लॉक इन ऑफ 3 years। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम 3 years के लिए लॉक हो गया है। आप 1,000 इन्वेस्ट करो या 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करो, आप 3 years के पहले विड्रॉल नहीं कर सकते। दिस इज अ क्लॉज, दिस इज वॉट टैक्स सेवर फंड्स टेल्स यू, और आप 46,800 रुपीज़ सेव कर सकते हो। एज फॉर द पॉलिसीज, टैक्स सेवर फंड्स भी अच्छा खासा रिटर्न दे देते हैं, जो कि कंसिडरेबली अच्छा है। मैंने भी जो मेरे फंड्स हैं वो टैक्स सेवर्स ही हैं,
जस्ट बिकॉज आपके पास एक डिसिप्लिन बनता है कि 3 इयर्स के लिए आप इन्वेस्टेड हो मार्केट में, एंड व्हेन यू आर इन्वेस्टेड फॉर 3 इयर्स, जो नेक्स्ट 27 इयर्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपको ईजी लगते हैं, सो यू गेट टू इन्वेस्ट फॉर 30 इयर्स. सो एज सिंपल एज दैट. SIP इज 500. ये जितने भी SIPs हैं सब 500 से आपको चांस देती हैं इन्वेस्ट करने का. इवन 100 रुपीज़ से भी बहुत सारी SIPs हैं आपको चांस देती हैं हाई रिटर्न्स. हाई रिटर्न में 95, यू कैन इमेजिन 95, 97, 83, 66, ह्यूज रिटर्न आप सोच सकते हो. सो यही है. This is why I want everyone to invest in SIPs and lump sums. If not big amount, start with small, start with 1,000, 2,000, 4,000 and you will end up in good profit. Investments, ये तो मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि ठीक ठाक रिटर्न दे रही हैं 20.59%. I will increase my investment in near future. लाइव ट्रेडिंग भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वेरी सुन. I will come live. अभी मार्केट बंद है, सुबह के 2 बज रहे हैं. So it will open at 9:15 AM. कल मैं आपको मार्केट का एक ओवरव्यू दूंगा, हाउ मार्केट इज परफॉर्मिंग, और इफ पॉसिबल एक ट्रेड भी लूँगा. एंड आई विल ट्राई टू कम लाइव आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद. सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग. टू समराइज, आई वुड से वी हैव लिक्विड फंड्स एंड नॉन लिक्विड फंड्स. लिक्विड फंड्स क्या होते हैं? जो कि इमरजेंसी फंड्स होते हैं और हमें कभी भी इमरजेंसी में उसका ज़रूरत पड़ सकता है, बट वो 7 से 8% ही रिटर्न देते हैं. आप कभी भी निकाल सकते हो, उस पर कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है. वेयर एज जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि नॉन लिक्विड होते हैं इन नेचर, वो अच्छा रिटर्न देते हैं आपको, 15 से लेकर 20% तक रिटर्न देते हैं, बट उस पर एग्जिट लोड लगता है 1% का. जो टाइम पीरियड पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड नहीं रखा है उससे पहले आप निकालोगे तो 1% आपको बियर करना पड़ेगा. और सेकंड थिंग इज, वो फंड्स आपको 1-2 घंटे 4 घंटे में रिडीम करके पैसा नहीं दे पाएंगे. उसके लिए आपको 1 डे 2 डे रिटर्न वेट करना पड़ेगा, विच इज़ लिटिल रिस्की व्हेन इट कम्स टू अर्जेंट नीड ऑफ मनी. सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप अपना 20% 30% ऑफ द मनी आप इमरजेंसी फंड्स में, लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करो, और बाकी 70% आप नॉर्मल SIPs, लार्ज, स्मॉल एंड मिड कैप्स में इन्वेस्ट कर सकते हो. एंड आई विल रिकमेंड कि यू कैन गो फॉर large funds, small funds and liquid funds, and I will recommend you to go for large funds, small funds and mid funds in equal scales. उसमें कुछ ऐसा करने का नहीं है. हमारे सीनियर्स जो कि जिनके पास मार्केट का अच्छा नॉलेज है वो बोलते हैं कि लार्ज का कैप्स में ज़्यादा पैसे डालो, उसके बाद मिड में, फिर स्मॉल में, रिस्क के हिसाब से. बट यू कैन सी एट योर ओन विश कि आप क्या करना चाहते हो. एंड ये स्टॉक सेक्शंस में एक बार समराइज कर लेता हूँ. स्टॉक सेक्शंस में इंडेक्स होता है जिसमें कि ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स होता है. ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स होता है. मैंने आपको चार्ट का एक समरी दे दी है. चार्ट्स में बेसिक इंडिकेटर्स में एक आपका RSI होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, एक मूविंग एवरेज होता है 44 मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल होता है जो, और एक होता है आपका पिवट पॉइंट इंडिकेटर्स. तो ये 3 इंडिकेटर्स होते हैं जिससे आप चार्ट का अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो, और आप यू कैन कम टू नो कि चार्ट आप क्या बोल रहा है, चार्ट से बातें कर सकते हो. ओके, सो ये हो गया. इंडेक्सेस में आप ऑप्शंस कर सकते हो. ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है, हर ऑप्शंस की एक दिन एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी. और फिर स्टॉक्स में आप डिलीवरी स्टॉक्स ले सकते हो जो कि लॉन्ग टर्म है, जिसे सेम डे आप नहीं बेचोगे तो भी चलेगा. आप लेके 1 साल 2 साल होल्ड कर सकते हो. डिलीवरी स्टॉक में कोई लेवरेज नहीं मिलती है, बट वो बहुत सेफ है पैसे बनाने के लिए मार्केट में. जस्ट आपके पास अच्छा कैपिटल होना चाहिए. एंड सेकेंड इज इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग, जहाँ पे आपको 5x लेवरेज मिलता है. अगर आप 5 टाइम्स ज़्यादा ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक्स खरीद सकते हो, बट उसका क्लॉज है कि आपको सेम डे अपने स्टॉक्स को सेल करना पड़ेगा.
अदरवाइज आपको पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। सो वो बहुत रिस्की है। सो आई वोंट रिकमेंड डू इट एट योर ओन रिस्क। एंड द थर्ड इज स्टॉक्स में जो आपका ऑप्शंस होता है, जैसे कि मैंने दिखाया था TCS में हुआ था, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी रिस्की। तो वो 3 तरह के स्टॉक्स में होते हैं, और बाकी इंडेक्स में ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स होता है। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे भाई एंड बहन। डू टेल मी इन कमेंट्स आपको और कौन सा ट्यूटोरियल चाहिए, आई विल ब्रिंग दैट फॉर यू। और आपको और किस किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, आई विल ट्राई टू सॉल्व एंड आई विल ट्राई टू मेक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑन दैट दोज प्रॉब्लम्स विच यू आर फेसिंग। और आपको क्या चीज़ और लर्न करनी है, आपको क्या स्पेसिफिक चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है जिससे कि आपका पैसा नहीं बन पा रहा है या आप लॉस कर रहे हो, सो दैट आप उसे अच्छे से लर्न करके प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाओ। सो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। सो मेरे बहन और मेरे भाई, लेट्स चेक आउट। गुड बाय।